Okay, students, the topic today is peritoneum, and it is quite a long topic. So I would just request you to all be with me and try to understand the concepts because it is a little difficult to understand the disposition and the laying out of the peritoneum in the abdominal cavity. Okay, in these pictures, this thing that is covering the abdominal contents in front is part of the peritoneum, and it's called greater omentum. In this picture also, the yellow thing that you see in front is the peritoneum. Okay, now let's start. To define peritoneum, the peritoneum is a thin serous membrane that lines the abdominal cavity and clothes the abdominal organs, or in other words, you can say that it provides the covering of the abdominal organs to protect or support them and to facilitate their movement within the abdominal cavity. In these pictures, I've tried to show you the appearance of peritoneum when you open the abdominal cavity. Okay. In the left hand picture, you can see this yellow thing that is covering the small intestines is the peritoneum, is part of peritoneum. And here in the right hand side lower picture, you can see that we have opened the abdominal cavity. We have removed the anterior abdominal wall and opened up all the abdominal wall muscles. And this is what we see. This dark thing, this membranous structure that covers the front of the intestine is the peritoneum. It's a special fold which is called greater omentum, but right now let's just call it peritoneum. Okay? Okay, now the first thing that I want to discuss is that why is it difficult to understand the position and arrangement of peritoneum? The reasons are because of the complicated twists and turns of the intestines during development. When the primitive gut develops into the adult form, there are complicated twists and turns of the intestines. When you will study the development of gastrointestinal tract in special embryology, only then you will understand. But today I will just try to give you short things or hints so you can understand how these complicated twists and turns of the GIT affect the disposition of peritoneum in the abdominal cavity. The second reason is that there are adhesions and merging of the layers during repositioning of the intestines. Obviously, when there is repositioning of the intestines, if one layer comes to lie on top of another layer, during development, these two layers will fuse. At some positions, the layers fuse, at others, the layers do not fuse. So they give us the adult form of peritoneum. So we have to understand that during development, what happens to the position of the intestines so that it results in the adult form of the peritoneum, right? Now, the third reason is that we need to understand the different terms related to the different folds of peritoneum. For example, at places we say peritoneum. At other places, we say that this is mesentery. At some places, we say it is a ligament. At other places, we say that this is omentum or mesentery. I mean, there are different terms which we have given names to those different folds of peritoneum. We need to understand why do we give these names to these different folds. So in the following slides, I'm going to tell you why we call different folds by different names. Okay. Now, the last reason is that intraperitoneal and extraperitoneal concept. First of all, I would like to tell you that certain structures that are
lying on, or that are lying such that they are covered on all sides, almost all sides, by the peritoneal membrane. We call them intraperitoneal, right? And those structures which are not covered by peritoneum on all sides, we call them extraperitoneal. Now, there is a little disparity between the anatomical division of the intraperitoneal and extraperitoneal and clinical definition of intraperitoneal and extraperitoneal. There is a disparity between the two. And what is that? That I'm also going to tell you in the following slides, uh, provided I remember it. Okay. Now, the story begins from the body cavities development. The body cavities, or the coelomic cavity, it divides into pericardial, pleural, and peritoneal cavities lined by serous membranes. And these serous membranes are called pericardium, pleura, and peritoneum. The pericardial cavity contains the heart, right? And the pericardial cavity is covered on all sides by the pericardial cavity is covered on all sides by pericardium. So there is a somatic layer, and which covers the walls from the inside, and there is a visceral layer which covers the heart from the outside, right? So there are two layers, one that covers the walls and the other one which covers the viscera inside. Okay. Similarly, the pleural cavity, which contains the lungs, is covered on the inside by the pleura, its somatic layer, and the lungs are covered on the outside by the visceral layer of pleura. Similarly, the peritoneum is the serous membrane that covers the peritoneal cavity from inside. It covers the inside of the walls, and we call it the somatic layer. The somatic layer of the peritoneum, right? And the layer of the peritoneum that covers the viscera inside the peritoneal cavity, we call it the visceral peritoneum, right? Okay. Now, to understand the peritoneum concept, we use a balloon model. Okay. Let's suppose that there is a balloon against which your hand is compressed, or your hand invaginates this balloon. It is pushed inside the cavity. It is pushed against this inflated balloon. You can have a look at this picture and you can understand what I'm saying. Have a look at this second picture in which the fist is pressed against this inflated balloon. Okay. Now, the thin serous membrane which lines the abdominal cavity is the peritoneum. We've already discussed this. Can be best understood if compared with the same inflated balloon. It lines the walls of the abdominal and the pelvic cavities and closes the viscera. We've already discussed these things. Now, I just want you to have a look at this balloon model and see that if this hand is compressed against this semi-inflated balloon, what happens is that there is a layer of this balloon which covers the outside of the fist. This layer of balloon which covers the outside of the fist is the visceral layer. Okay, and then there is a layer of the balloon which is against this visceral. Okay, let's continue from the slide that we were already discussing. We were here on this slide and we were discussing how the different organs invaginate the peritoneal cavity. So suppose the peritoneal cavity is like a semi-inflated balloon and we press a fist against this semi-inflated balloon. The part of the balloon that covers this fist becomes the visceral peritoneum, and the part of the balloon which is against this visceral peritoneum, which is away from the fist,
is the parietal peritoneum. So parietal peritoneum is the one that covers the walls, and visceral peritoneum is the one that covers the viscera, right? And now in the next picture, this, in which the fist is completely invaginated into this balloon, you can see that here, this white line is the visceral peritoneum, and this dark line, this purple line, is the parietal peritoneum. And here, where lies the wrist, this part which connects the visceral peritoneum with the parietal peritoneum. I'll define it again. Here, the part of the membrane or part of the balloon wall that connects the visceral part with the parietal part, this becomes the fold that suspends that organ in the cavity, or we call it mesentery, that suspends the intestines in the cavity. And this cavity of the balloon, the cavity inside the balloon, becomes the peritoneal cavity. Okay. Have a look at this diagram on the left hand side. Can you see this? Now this is the primitive gut, and this is the cavity. We've taken a section of it so you can understand how the gut invaginates in this cavity. In the second picture, you can see the part that suspends this gut within this cavity. Now this gut is not actually inside this cavity, but it is surrounded by some part of this, the walls of this cavity that surrounds it on all sides. Okay. Now let's, अगर हम कह रहे हैं कि एक organ intraperitoneal है, such as the stomach, which appears to be surrounded by the peritoneal cavity, and it is covered with visceral peritoneum, and it is attached to other organs by omenta. इस बात का मतलब ये है कि पेरिटोनियल कैविटी जो है वो एक्चुअली पेरिटोनियल कैविटी के अंदर हम नहीं कंसिडर कर रहे हैं. हम अगर कह रहे हैं कि कोई ऑर्गन इंट्रापेरिटोनियल है, तो उसका मतलब ये है कि वो ऑर्गन पेरिटोनियम से कवर्ड है ऑन ऑल द साइड्स. एक्चुअली कोई भी ऑर्गन इनसाइड द पेरिटोनियल कैविटी नहीं है. जैसे हमने बलून मॉडल की बात की थी, ठीक है. तो हमने कहा कि ऑर्गन जो है वो उसको इन्वेजिनेट करके पुश कर रहा है. अब बलून के अंदर की कैविटी के अंदर तो नहीं वो जा रहा ना, बलून के अंदर की कैविटी तो सेपरेट है, और वो विसरा जो है वो बलून की कैविटी के अंदर नहीं है, वो उसके बाहर है, बट इट इज कवर्ड ऑन ऑल साइड्स बाय द बलून वॉल्स. इसका मतलब है कि जब हम पेरिटोनियल कैविटी की बात करते हैं, तो हम जब कहते हैं कि कोई ऑर्गन इंट्रापेरिटोनियल है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो पेरिटोनियल कैविटी के अंदर पड़ा हुआ है. उसका मतलब ये है कि वो सराउंडेड बाय द पेरिटोनियम ऑन ऑल साइड्स है. ठीक है. इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि क्लिनिकल और एनाटॉमिकल डिस्पैरिटी होती है. क्लिनिकल साइड पर जब हम कहते हैं कि इंट्रापेरिटोनियल है, हम कहते हैं कि इंट्रापेरिटोनियल इंजेक्शंस लगाने हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि पेरिटोनियल कैविटी के अंदर इंट्रापेरिटोनियल इंजेक्शन लगाना है. वो जो कैविटी है, वो जो कैविटी बिटवीन द पेराइटल एंड द विसरल वॉल्स है, उसके अंदर लगाना है. लेकिन जब हम एनाटमी में इंट्रापेरिटोनियल की बात करते हैं, तो हम एनाटमी में हमारा मतलब ये होता है कि वो ऑर्गन जो है वो सराउंडेड बाय द पेरिटोनियम ऑन ऑल साइड्स. और अगर कोई एक्स्ट्रा पेरिटोनियल की बात हम कर रहे हैं एनाटमी में, तो हमारा मतलब ये है कि वो ऑर्गन that organ is not surrounded by the peritoneum on all sides. या तो वो एक साइड पर या फ्रंट पर कुछ पार्ट उस ऑर्गन का जो है that is covered by peritoneum, not all sides. ठीक है. ओके. अब एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द पेरिटोनियम की अगर हम बात करें, तो हमें पता है कि पेरिटोनियम डेवलप होती है लैटरल प्लेट मेसोडर्म से. आपने एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ा है कि जो हमारी 3 लेयर्स होती हैं, डिस्क की 3 लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म. इसमें जो मेसोडर्म है उसकी भी आगे से फर्दर 3 हम डिविजन्स करते हैं.
ठीक है, अगर आप इस डायग्राम में देखो तो ये दिस इज पारेक्सियल मेसोडर्म, फिर इंटरमीडिएट मेसोडर्म होता है, फिर लैटरल प्लेट मेसोडर्म होता है। ठीक है, ओके, तो ये हमारी जो पेरिटोनियम है वो लैटरल प्लेट मेसोडर्म से डिराइव होती है। ठीक है, जो लैटरल प्लेट मेसोडर्म है दैट फर्दर स्प्लिट्स इनटू टू लेयर्स. One is the parietal layer or the somatic layer, and the other one is the visceral layer. Visceral and the parietal layers becomes continuous with each other at the dorsal mesentery. ठीक है, मैंने अभी आपको दिखाई थी बलून मॉडल में कि जो पार्ट विसरल और पैराइटल लेयर्स को कंटिन्यू कर रहा है, जहां पे आके दोनों कंटिन्यूअस हो जाती हैं, जो वो रिस्ट के ऊपर मैंने कहा था कि कवर कर रही है बलून की वॉल, दैट बिकम्स द डोर्सल मेसेंट्री। ठीक है, और अगर आप ये नीचे डायग्राम में देखो, हाँ ये राइट हैंड साइड पर देखो डायग्राम आपको नजर आ रही है। इसमें जो थर्ड वाली डायग्राम है, हैव अ लुक एट दिस, इसमें आपको ये नजर आ रही है गट, गट को कवर कर रही है पेराइटल पेरिटोनियम, और ये एब्डोमिनल वॉल्स हैं जिनको के हमारी पेराइटल लेयर कवर कर रही है। तो पेराइटल और विसरल लेयर यहाँ पे कंटिन्यू कर रही है, दिस बिकम्स द डोर्सल मेसेंट्री या डोर्सल मीजोगैस्ट्रियम। ये पीछे से जो आ रही है पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से गट तक आ रही है, दैट बिकम्स द डोर्सल मेसेंट्री। ठीक है, और जो डोर्सल मेसेंट्री है वो हमने क्या कहा, वो कहाँ से डिराइव हो रही है, लैटरल प्लेट मेसोडर्म से। ठीक है, अच्छा, फिर एक वेंट्रल मीजोगैस्ट्रियम भी होता है, एक वेंट्रल मेसेंट्री भी होती है जो कि गट को एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से कनेक्ट करती है। अगर आप इसी लोअर डायग्राम में देखो तो फोर्थ वाली जो डायग्राम है नीचे, ये देखो यहाँ पर आपको नजर आ रही है ये वेंट्रल मेसेंट्री, ये एंटीरियरली गट को कवर कनेक्ट करती है एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ, इसको वेंट्रल मेसेंट्री कहते हैं। अच्छा, इसका एम्ब्रियोलॉजिकल जो डेरिवेशन है वो डिफरेंट है डोर्सल मेसोगैस्ट्रियम से। ये कहाँ से आ रहा है, ये सेप्टम ट्रांसवर्सम के जो कॉर्डली जो कैविटी होती है ना, वहां से डिराइव हो रहा है। ये देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है मैंने कि पेरिटोनियल कैविटी इज डिराइव्ड फ्रॉम द पार्ट ऑफ द एम्ब्रियोनिक सिलोम सिचुएटेड कॉर्डल टू सेप्टम ट्रांसवर्सम। ठीक है, सेप्टम ट्रांसवर्सम एक चीज होती है जिसमें जो कि जिससे हमारा थोरैकोअब्डोमिनल डायफ्राम डिराइव होता है, जिसमें कि लिवर भी डेवलप होता है, तो वो वहीं पर उसकी जो कॉर्डली एम्ब्रियोनिक सिलोम होता है उसमें से वेंट्रल मेसेंट्री डिराइव होती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि डोर्सल मेसेंट्री किससे डिराइव होती है, तो आपने कहना है विसरल एंड पैराइटल लेयर्स, they are derived from the lateral plate mesoderm, and the वेंट्रल मेसेंट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम द सेप्टम ट्रांसवर्सम। आप इस डायग्राम में भी देखो, ये देखो मेसोडर्म डिराइव हुआ है पारेक्सियल, इंटरमीडिएट और लैटरल प्लेट मेसोडर्म में, और लैटरल प्लेट मेसोडर्म फिर दो में। ये देखो ये पैराइटल लेयर है जो वॉल्स बना देगी, और ये विसरल लेयर है जो गट को सराउंड कर रही है, ये विसरल पेरिटोनियम बना देगी। This is another diagram. I think you understand it now कि ये पीछे जो सस्पेंड कर रही है पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ गट को, उसको हम कह रहे हैं डोर्सल मेसेंट्री है, और जो एंटीरियरली कनेक्ट कर रही है वो वेंट्रल मेसेंट्री है। ठीक है, नीचे वाली दोनों डायग्राम्स में मैंने ब्लू कलर का जो शो किया है आपको, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जो गट होती है हमारी, वी ऑलरेडी नो कि फोरगट है, मिड गट है और हाइंड गट है। जो फोरगट का पोर्शन है उसकी जितनी भी लोकेशन होती है वहां पर वेंट्रल मेसेंट्री भी होती है, डोर्सल मेसेंट्री भी होती है। आप जो हमारी लेफ्ट डायग्राम है नीचे वाली, आप उसमें देखो तो आपको पता चल रहा है कि फोरगट की वेंट्रल मेसेंट्री भी है, डोर्सल मेसेंट्री भी है। लेकिन मिडगट और हाइंडगट, आप राइट हैंड साइड की लोअर डायग्राम देखो, मिडगट और हाइंडगट की सिर्फ डोर्सल मेसेंट्री है, वेंट्रल मेसेंट्री नहीं है। आपको पता है, मैंने ये बता दिया है कि वेंट्रल मेसेंट्री यहाँ पर जो सेप्टम ट्रांसवर्सम है उसके कॉर्डली सिलोम जो है उससे डिराइव हुई है। ठीक है,
और ये जो हमारी डोर्सल मेसेंट्री है, फोरगट, मिडगट और हाइंडगट के लेवल्स पर, ये सारी कहाँ से डिराइव हो रही है? लैटरल प्लेट मेसोडर्म से। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इन डिफरेंट रीजन्स में जो हमारी पेरिटोनियम डेवलप हो रही है, वो किस तरह से उसमें डिफरेंट ऑर्गन्स डेवलप हो रही है और वो कैसे डिवाइड हो रही है। I just want you to have a look at this diagram. ये राइट हैंड साइड का अपर डायग्राम, ये जो कलर डायग्राम है, ठीक है, इसमें देखो तो ये पोर्शन जो है ये फोरगट का है। दिस इज ओपनिंग ऑफ द कॉमन बाइल डक्ट, सो वी नो कि यहाँ पे फोरगट एंड हो रहा है। इसके नीचे हमारा मिडगट है ये, और फिर उसके बाद हाइंडगट है जहाँ पे जंक्शन होता है हमारे राइट 2/3 और लेफ्ट 1/3 ऑफ द ट्रांसवर्स कोलॉन का। दैट इज द जंक्शन जहाँ पे मिडगट और हाइंडगट का जंक्शनल पोजीशन है। ठीक है, अब यहाँ इस डायग्राम में देखो तो आपको ये जो ब्राउन कलर की डेवलप होती हुई नजर आ रही है, दिस इज द पेरिटोनियम। हमने कहा फोरगट के रीजन में हमारी वेंट्रल मेसेंट्री भी है, हमारी डोर्सल मेसेंट्री भी है। जो हमारी वेंट्रल मेसेंट्री है उसमें लिवर ने डेवलप होना है। ठीक है, ये देखो ये जो ब्राउन कलर्ड स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है वेंट्रल मेसेंट्री में, ये लिवर है, ये लिवर डेवलप हो रहा है इसमें। जो लिवर, अच्छा ओके, एक काम करो, लेट्स हैव अ लुक एट दिस डायग्राम ऑन द लेफ्ट साइड। ये लेफ्ट अपर कॉर्नर वाली जो डायग्राम है ना, इसको देखो, ये किसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है। ठीक है, दिस इज द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, दिस इज द स्टमक, डेवलपिंग स्टमक, दिस इज द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। ठीक है, अब यहाँ पर स्टमक के एंटीरियरली हमारे पास वेंट्रल मेसेंट्री है। ठीक है, वेंट्रल मीजोगैस्ट्रियम है, इसमें लिवर डेवलप हो रहा है। फिर स्टमक के पीछे देखो तो जो हमारी डोर्सल मेसेंट्री है, डोर्सल मेसेंट्री में स्प्लीन डेवलप हो रहा है। वेंट्रल मेसेंट्री में जब लिवर डेवलप हो रहा है तो उसने वेंट्रल मीजोगैस्ट्रियम को डिवाइड कर दिया इनटू एन एंटीरियर पार्ट, ये वाला एंटीरियर पार्ट, एंड अ पोस्टीरियर पार्ट। ठीक है, अब इसका एंटीरियर पार्ट जो है which lies in front of the liver, this part develops to be the falciform ligament। ये देखो ये लिखा हुआ है falciform ligament। ठीक है, इसी तरह से लिवर के पोस्टीरियरली जो पार्ट हमारे पास आ रहा है वेंट्रल मीजोगैस्ट्रियम का, which lies in front of the stomach, this becomes the lesser omentum। अभी सिर्फ नामों पे गौर करो कि मैं क्या नाम ले रही हूँ और आपको क्या कह रही हूँ, ये कैसे डेवलप हो रहे हैं, ये क्या है, ये कहाँ से कहाँ अटैच्ड है, ये क्या कर रहे हैं, इनके कंटेंट्स क्या है, वी गोना डिस्कस इट इन द नेक्स्ट स्लाइड्स। लेकिन अभी देखो तो लिवर के एंटीरियरली फैल्सिफॉर्म लिगामेंट डेवलप हो रही है, लिवर के पोस्टीरियरली हमारे पास डेवलप हो रही है, ये क्या हो गया, लिवर के पोस्टीरियरली और स्टमक के एंटीरियरली हमारे पास लेसर ओमेंटम डेवलप हो रही है। इसी तरह स्टमक के पीछे स्प्लीन डेवलप हो रही थी इन द डोर्सल मीजोगैस्ट्रियम, उसने डिवाइड कर दिया हमारी डोर्सल मीजोगैस्ट्रियम को इनटू गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट। जाहिर है ऑर्गन के नाम के साथ ही हम इसको नाम देंगे ना, स्टमक और स्प्लीन के दरमियान में हो रही है तो हम कह रहे हैं कि ये गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट है। इसके भी हमने जो डोर्सल मीजोगैस्ट्रियम है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक इसका क्रेनियल पार्ट है जिसमें स्प्लीन डेवलप हो रही है, एक इसका कॉडल पार्ट है। ठीक है, जो उसके कॉडली है, जो इसका क्रेनियल पार्ट है जिसमें स्प्लीन डेवलप हो रही है, वो हमने कहा कि स्प्लीन की वजह से गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट में डिवाइड होगी और लाइनोरीनल लिगामेंट में डिवाइड होगी, जो कि स्प्लीन और किडनी को कनेक्ट करती है। जी बेटा, हम यहाँ पर थे, इसी स्लाइड से कंटिन्यू करते हैं।
हमने कहा कि वेंट्रल मीजोगैस्ट्रियम में लिवर ने एंटीरियरली फैल्सिफॉर्म लिगामेंट बना दी और पोस्टीरियरली लेसर ओमेंटम बन गई बिटवीन द लिवर एंड स्टमक। फिर हमने कहा कि स्टमक के पीछे जो डॉर्सल मीजोगैस्ट्रियम है, दो पार्ट्स में वो डिवाइड हो गया, एक क्रेनियल पार्ट है, एक कॉर्डल पार्ट है। क्रेनियल पार्ट में स्प्लीन डेवलप हो रही है और उससे क्या वहां पर वो उसके डेवलप होने से क्या हो रहा है कि डॉर्सल मीजोगैस्ट्रियम डिवाइड हो रहा है इनटू गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट एंड लाइनोरीनल लिगामेंट विच इज बिटवीन द स्प्लीन एंड द किडनीज। ठीक है, फिर इसका जो कॉर्डल पार्ट है वो क्या बन रहा है, वो ग्रेटली इलोंगेट हो जाता है और वो बना देता है ग्रेटर ओमेंटम। ठीक है, जो कि हमारे स्टमक के ग्रेटर कर्वेचर के साथ एक एप्रन की तरह की पेरिटोनियल फोल्ड जो है वो सस्पेंड हो जाती है। ठीक है, बेटा आवाज आ रही है आप लोगों को? यस मैम। ओके, अब ये हमारी फोरगट की फोल्ड्स के हमने नाम कर लिए। फिर मिडगट देखो तो मिडगट में हमारे पास वेंट्रल मीजोगैस्ट्रियम तो नहीं है, डॉर्सल मीजोगैस्ट्रियम है। डॉर्सल मीजोगैस्ट्रियम क्या बन जाता है, मेसेंट्री। ठीक है, मेसेंट्री, एंटेरॉन वर्ड हम यूज करते हैं इंटेस्टाइन्स के लिए, एंट्री एंटेरॉन से डिराइव होता है, तो मेसेंट्री बन जाती है जो कि हमारी मिडगट को सस्पेंड कर रही है पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से। हमारी फोरगट की आर्टरी कौन सी है, सीलियक ट्रंक। हमारी मिडगट की आर्टरी कौन सी है, सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। फिर हमारी जो हाइंड गट होती है, ठीक है, जो लार्ज इंटेस्टाइन एंड उसकी जो आगे चीजें होती हैं वो जो सस्पेंड होती है, उसके अंदर भी जो फोल्ड्स हमारी बन रही हैं वो हम उसको उसके मुताबिक नाम देते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि ट्रांसवर्स कोलॉन जो है वो लटक रहा है पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ, हम कहते हैं कि ये हमारा ट्रांसवर्स मीजोकोलॉन है। फिर सिग्मोइड कोलॉन सस्पेंड कर रहा होता है, हम कहते हैं कि ये हमारा सिग्मोइड मीजोकोलॉन है। फिर हमारा मीजो अपेंडिक्स होता है जो अपेंडिक्स को सस्पेंड करता है। ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन की भी डिफरेंट फोल्ड्स होती हैं जो कि उसको पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ सस्पेंड कर रही हैं। और हमारी हाइंडगट की आर्टरी इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी है। ठीक है, मैं ये बार बार रिपीट करती हूँ ताकि आपको पता चले और भूले ना कि कौन से पार्ट की कौन सी आर्टरी है। ओके, अब ये हमने नाम कर लिए फोल्ड्स के कि हमारे किस तरह से नाम जो है वो बनते हैं। ओके, आगे चलते हैं। ये देखो ये हमारी डिस्क है, एम्ब्रियोनिक डिस्क। दिस ब्लू इज एक्टोडर्म, दिस रेड इज मीजोडर्म, दिस येलो इज एंडोडर्म। ये देखो कैसे डेवलप होगी। हमारा मीजोडर्म डेवलप हो रहा है पारेक्सियल, इंटरमीडिएट और लैटरल प्लेट में। आपने सिर्फ लैटरल प्लेट को देखना है कि कैसे वो, ये देखो ये श्रिंक करके ये विसरल पेरिटोनियम बन जाएगी और ये सिलोमिक कैविटी इसको लाइन जो कर रही है वो पेराइटल पेरिटोनियम बन जाएगी। ठीक है, ये देखो ये कैसे डोर्सल मेसेंट्री बन गई, ये जो लाइन कर रही है वॉल्स को लाइन कर रही है ये पेराइटल पेरिटोनियम बन गई, ये विसरल पेरिटोनियम बन गई और ये जो इन दोनों को कनेक्ट कर रही है वो डोर्सल मेसेंट्री बन गई। ठीक है, फिर मैं ये इसलिए आगे कर रही हूँ बेटा कि आई जस्ट वांट यू कि आपको आपकी रिक्वायर्ड चीज दिखाऊं। ये देखो ये एम्ब्रियो है, ये इसका सेक्शन करके दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, सो यू अंडरस्टैंड। ये गट है और उसमें ये
डोर्सल मेसेंट्री में पैनक्रियाज ये देखो डेवलप हो रहा है, ये इस तरह से रोटेट करेगा। पैनक्रियाज पहले इंफ्रापेरिटोनियल होता है और बाद में रीट्रोपेरिटोनियल हो जाता है, क्योंकि इस तरह से जब गट रोटेट करती है तो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ वो एक्स्ट्रा पेरिटोनियल हो जाता है। ये मिड गट है। आपको पता है कि मिड गट जो है उसकी फिजियोलॉजिकल हर्निएशन होती है अम्बिलिकल कॉर्ड में एट 6 वीक्स, और जब होती है हर्निएशन तो उसकी रोटेशन भी होती है और 10 वीक्स पर वो वापस एब्डोमिनल कैविटी में आ जाती है मिड गट। ये देखो, ये देखना और अंडरस्टैंड करना इसलिए ज़रूरी है कि इसी से आपको रिपोजिशनिंग समझ आती है कि ऑर्गन्स की और पेरिटोनियल फोल्ड्स की क्यों इतनी कॉम्प्लिकेटेड रिपोजिशनिंग होती है। ये देखो रोटेशन हो रही है गट की, और ये लार्ज इंटेस्टाइन की रिपोजिशनिंग, उसके बाद सीकम की डिसेंड होती है राइट आइलिड फोसा में। अब क्योंकि इनके साथ सब डोर्सल मीजोगैस्ट्रियम और वेंट्रल मीजोगैस्ट्रियम लगा हुआ है गट के साथ, तो जैसे जैसे इनकी रिपोजिशनिंग होती है वैसे वैसे उसकी कॉम्प्लिकेटेड एब्जॉर्प्शन और रीलोकेशन होती है। ठीक है, ये आई थिंक बाकी की चीज़ें आप फिर जब स्पेशल एम्ब्रियोलॉजी पढ़ोगे ना तो उसमें आप ये पढ़ लेना। ठीक है, हम वापस अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। ओके, अब आई होप कि आपको इसकी सारी डेवलपमेंट और उसकी रिपोजिशनिंग का थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि कैसे होती है। ओके, द टाइप्स ऑफ पेरिटोनियम अगर आपसे कोई पूछे तो आप उसको बताएंगे कि पेराइटल पेरिटोनियम है। पेराइटल पेरिटोनियम की उसको समराइज अगर हम करना चाहें, उसको समराइज करें तो पेराइटल पेरिटोनियम लाइंस द इनर surface of the walls of the abdominal and pelvic cavities and the lower surface of diaphragm. It is loosely attached to these walls, can be easily stripped off. Embryologically, it is derived from the somatopleuric layer of lateral plate mesoderm. ठीक है, it receives the same somatic nerve supply as the region of the abdominal wall that it lines. Therefore, pain from the parietal peritoneum is well localized and it is sensitive to pressure, pain, laceration, and temperature. The parietal peritoneum derives its blood supply from the abdominal wall and drains into the inferior vena cava. ठीक है, तो जो इसकी कवरिंग एब्डोमिनल वॉल है वही नर्व सप्लाई, वही ब्लड सप्लाई इसको मिलती है, और ये हमारा क्योंकि इसकी सोमैटिक इनोवेशन है इसलिए ये पेन सेंसिटिव है। अगर हम विसरल पेरिटोनियम की बात करें तो visceral peritoneum lines the outer surface of the viscera to which it is firmly attached. It cannot be stripped off. Embryologically, it is derived from the splanchno-pleuric layer of lateral plate mesoderm, and because of the autonomic innervation, it is not pain sensitive. ठीक है, you should remember कि हमारी जो parietal peritoneum थी वो pain sensitive थी, जो visceral peritoneum है वो it is not pain sensitive. Visceral peritoneum is the continuation of the parietal peritoneum which leaves the posterior wall of the abdominal cavity to invest certain viscera. ये बात भी आपको I'm sure समझ आ गई होगी। Okay, the peritoneal cavity is the space between the two layers, parietal and the visceral layer. Now have a look at the diagram on the right hand. राइट हैंड साइड ये देखो, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि जो रेड कलर की लाइन है, इस येलो कैविटी की रेड आउटलाइन जो नजर आ रही है ना आपको, दिस इज ऑल पेराइटल पेरिटोनियम। और जो आपको ब्लू कलर की लाइंस नजर आ रही है ना, ये देखो, ये जो अंदर ये हमारी गट की ये स्टमक की और ये इंटेस्टाइन की आउटर लाइनिंग दे रही है ब्लू कलर की, दिस इज विसरल पेरिटोनियम। ठीक है, अब ये जो स्पेस होती है, दिस इज द पेरिटोनियल कैविटी एंड इट कंटेन्स मिनिमल अमाउंट ऑफ पेरिटोनियल फ्लूइड secreted by the peritoneal mesothelial cells for the lubrication of peritoneal surfaces.
ऑब्वियसली द गट हैज टू मूव, वो जो उसकी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होती हैं, जब वो मूव करती है तो एक दूसरे के ऊपर मूव करना आसान हो जाता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द पेरिटोनियल फ्लूइड, क्योंकि वो सर्फेसिस की लुब्रिकेशन कर देता है. फिर मेल्स में पेरिटोनियल कैविटी इज अ क्लोज्ड कैविटी, बट इन फीमेल्स देयर इज अ कम्युनिकेशन विद द एक्सटीरियर थ्रू द यूट्राइन ट्यूब्स, यूट्रस एंड द वजाइना. ठीक है, between the parietal peritoneum and the fascial lining of the abdominal and pelvic walls is a layer of connective tissue and we call that extraperitoneal tissue. ठीक है, फिर हम इस कैविटी को डिवाइड करते हैं. Have a look at the diagram. आपको पेरिटोनियल कैविटी के अंदर दो कलर्स नजर आ रहे हैं, एक आपको पिंक कलर नजर आ रहा है, एक आपको ब्लू कलर नजर आ रहा है. ठीक है, so the peritoneal cavity is the largest cavity in the body. Divisions of the peritoneal cavity are that we divide it into this pink colored greater sac, which extends from the diaphragm above down to the pelvis below. और लेसर सैक क्या है? ये जो ब्लू कलर्ड आपको कैविटी नजर आ रही है, लेसर सैक लाइज बिहाइंड द स्टमक. ठीक है, अब ये दोनों कैविटीज बिल्कुल सेपरेट हो गई हैं, अलग हो गई हैं, एक्सक्यूज मी, अलग हो गई हैं, और इनके दरमियान में सिर्फ एक छोटा सा कम्युनिकेशन रह गया है. ठीक है, वो जो कम्युनिकेशन है, वो जो ओपनिंग है, उसको हम कहते हैं एपिप्लॉइक फोरामेन और फोरामेन ऑफ विंस्लो. आप इस डायग्राम में देखो, ये ब्लू कैविटी जो नजर आ रही है, इसमें ये छोटा सा ये सुराख नजर आ रहा है आपको पिंक कलर का. ये कम्युनिकेशन है इस पिंक कलर्ड कैविटी की और ब्लू कलर्ड कैविटी के दरमियान. ये एपिप्लॉइक फोरामेन है. ये कहाँ है, ये कैसे है, अभी देख लेते हैं. अच्छा, फिर जो नेक्स्ट लिखी हुई है बात, ये हमने डिस्कस कर ली है. अभी हमने बात ये की कि हमने पेरिटोनियल कैविटी को डिवाइड कर दिया इनटू अ ग्रेटर सैक एंड अ लेसर सैक. ग्रेटर सैक कौन सा है? जो डायफ्राम के नीचे और पेल्विस के ऊपर के दरमियान सारी कैविटी, जितनी भी पेरिटोनियल कैविटी है, वो ग्रेटर सैक है, सिवाय उस छोटे से पार्ट के जो स्टमक के पीछे है, और उसको हम कह रहे हैं कि वो लेसर सैक है या ओमेंटल बर्सा है. हमने उसका एक और नाम बता दिया कि उसका नाम लेसर सैक है या ओमेंटल बर्सा है. ठीक है, और दोनों कैविटीज के दरमियान में क्या कम्युनिकेशन है? द ओनली कम्युनिकेशन इज एपिप्लॉइक फोरामेन और फोरामेन ऑफ विंस्लो. देखो, दिस इज अनदर डायग्राम. ये मैं डायग्राम इसलिए आपको दिखाती हूँ कि अगर आपको ऑस्पी में कभी ये डायग्राम इस तरह से हमने लगाए तो आपकी नजर से गुजरे हुए हों. ये जो राइट हैंड साइड पे लोअर मोस्ट डायग्राम है, ये ग्रेज एनाटॉमी का डायग्राम है. इसमें आपको ये जो स्टमक का सेक्शन नजर आ रहा है. दिस इज लिवर, दिस इज स्टमक, और लिवर और स्टमक के दरमियान में ये लेसर ओमेंटम है. फिर स्टमक के नीचे जो लटक रहा है एप्रन की तरह से, दिस इज ग्रेटर ओमेंटम. स्टमक के पीछे वाली कैविटी लेसर सैक है या ओमेंटल बर्सा है, और बाकी रेस्ट ऑफ द कैविटी इज ग्रेटर सैक. ठीक है, अब हम ये वाली जो कैविटी होती है ना, लेसर सैक या ओमेंटल बर्सा, इसको थोड़ा डिटेल से पढ़ते तो ग्रेटर सैक को भी हैं, लेकिन इसको हम ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं इसकी बाउंड्रीज पे, इसके कंटेंट्स पे, इसकी रिसेसेस पे. इसका SCQ भी आ जाता होता है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ओमेंटल बर्सा, या एन्यूमरेट द वॉल्स सुपीरियर, इंफीरियर, राइट, लेफ्ट, इस तरह से क्वेश्चन आ जाता होता है. तो आपको ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी होता है. ठीक है, अब अगर आप देखो तो ये इस सेंटर वाली डायग्राम में तो मैंने आपको बता दिया कि ओमेंटल बर्सा ये ब्लू वाली कैविटी है. ठीक है, लेसर सैक लाइज बिहाइंड द स्टमक एंड द लेसर ओमेंटम. ये जो लेसर ओमेंटम वाली बात है ना, ये अभी हम आगे जाते हैं तो हम करते हैं, अभी आपको ये समझ नहीं आएगा. अभी ये बात समझ आ जानी चाहिए कि स्टमक के पीछे वाली जो कैविटी हमारी बन रही है, पेरिटोनियल कैविटी का जो पार्ट है, वो लेसर सैक या ओमेंटल बर्सा है. अब इसकी बाउंड्रीज देखो कैसे बन रही है. सुपीरियरली देखो, इसी डायग्राम से आपको समझ आ जाएगा. सुपीरियरली देखो तो ये यहाँ पर डायफ्राम इसकी रूफ बना रहा है. इंफीरियरली देखो तो ये मैंने आपको कहा था स्टमक के नीचे ग्रेटर ओमेंटम लटक रहा. ठीक है, तो इसकी इंफीरियरली ये लेसर सैक एक्सटेंड करता है टिल द लेयर्स ऑफ द ग्रेटर ओमेंटम.
फ्यूज टुगेदर। ये फ्यूजन की बात भी हम बाद में करते हैं। पहले देख लो कि सुपीरियरली हमारे पास डायफ्राम है, इंफीरियरली हमारे पास ग्रेटर मोमेंटम है। लेफ्ट मार्जिन ऑफ द सैक इज फॉर्म्ड बाय स्प्लीन। ये वाली डायग्राम देखो जिसमें आपको स्टमक की आउटलाइन पड़ी हुई नजर आ रही है। मैंने आपको थोड़ी सी डिस्पोजिशन ऑर्गन्स की करवा दी है। अब आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट होगा कि यहाँ पर स्टमक जहाँ पड़ा हुआ है, ये देखो हमने स्टमक को रिमूव किया तो स्टमक के नीचे जो ऑर्गन्स पड़े हुए हैं ना, ये वाले, इनको हम कहते हैं स्टमक बेड। इसमें ये आपको स्प्लीन नजर आ रही है, ये येलो कलर का आपको पैनक्रियाज नजर आ रहा है, ये स्प्लेनिक वेसल्स नजर आ रही हैं, ये किडनी नजर आ रही है आपको, लेफ्ट किडनी, ये लेफ्ट सुप्रारीनल नजर आ रहा है, ठीक है। ये सारा स्टमक बेड हम कहते हैं कि ये स्टमक बेड है। अब ओमेंटल बर्सा स्टमक के पीछे है, तो जाहिरी बात है कि ओमेंटल बर्सा की लेफ्ट बाउंड्री स्प्लीन ही बनाएगा ना, ठीक है। फिर राइट मार्जिन हमारी एपिप्लॉइक फोरामेन होती है। आपको मैंने बताया कि एपिप्लॉइक फोरामेन जो है वो ओनली कम्युनिकेशन है बिटवीन द ग्रेटर सैक एंड द लेसर सैक। लोकेशन उसकी कहाँ होती है? यहाँ पे जहाँ पे स्टमक एंड हो रहा है, ड्यूडेनम स्टार्ट हो रहा है ना, इसके ऊपर यहाँ पर हमारी एक पेरिटोनियल फोल्ड है, हम कह रहे हैं वो लेसर ओमेंटम है। लेसर ओमेंटम के पीछे एपिप्लॉइक फोरामेन होता है। या इस वक्त आपको मेरा एरो नजर आ रहा है, कहाँ पर है? कैन यू सी माई कर्सर? Yes, ma'am. ये जहां पे कर्सर में मूव कर रही हूँ ना, यहाँ पर एपिप्लॉइक फोरामेन होगा, ठीक है। वो मैं आगे आपको दिखाती हूँ कि कहाँ पर कैसे क्या। अब ये बाउंड्रीज हो गई, हमारा एससीक्यू तैयार हो गया। अगर एससीक्यू आ जाएगा आपको स्टेज में कि राइट अ शॉर्ट नोट और मेंटल बर्सा, जो कि मोस्ट प्रोबेबली मैं दूंगी, मैं चेक करूंगी कि आपको क्या कॉन्सेप्ट है। अगर मैं आपको कहूँ कि ड्रॉ एंड लेबल अ डायग्राम शोइंग द बाउंड्रीज ऑफ लेसर मोमेंटम, तो आप ड्रॉ कर सकते हो कि नहीं कर सकते, ठीक है। फिर ये ऊपर देखो, एक आपको ये वाली डायग्राम नजर आ रही है, ठीक है, ये जो पिंक कलर की नजर आ रही है, इसमें मैंने क्या किया, एक ये सुपीरियर रिसेस है, एक ये इंफीरियर रिसेस है, एक इसकी ये स्प्लेनिक रिसेस है। इसकी रिसेसेस होती हैं सुपीरियर, इंफीरियर, स्प्लेनिक, ठीक है। फिर ये देखो इसमें ये पैनक्रियाटिक फोल्ड्स राइज कर रही हैं। मुझे पता है अभी ये जो मैं पैनक्रियाटिक फोल्ड्स राइज कर रही है तो मैं समझ नहीं आएगा, कोई बात नहीं। आप जब 2-3 दफा पेरिटोनियम पढ़ोगे ना तो आपको चीजें थोड़ी क्लियर होंगी। अभी डेवलपमेंट आई एम श्योर कि आपको समझ आ गई होगी। फिर ये यहाँ से इस साइड पर देखो, ये राइट साइड पर ये जो नजर आ रही है ना ओपनिंग, ये एपिप्लॉइक फोरामेन है जो मेंटल बर्सा को ग्रेटर सैक के साथ ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। एपिप्लॉइक फोरामेन की बाउंड्रीज भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ये भी बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। इसके एससीक्यू भी आ जाते होते हैं, इसका इनके एमसीक्यूज भी आ जाते होते हैं, ठीक है। अब आप इसमें देखो तो आपको राइट हैंड साइड पर, अपर साइड पर देखो तो ये डायग्राम नजर आ रहा है जिसमें ये सर्जन ने अपनी इंडेक्स फिंगर इधर ये इस फोल्ड के नीचे की हुई है और थंब ऊपर किया हुआ है। ये इंडेक्स फिंगर जो है ये इस वक्त एपिप्लॉइक फोरामेन के अंदर है, ठीक है। दिस इज द लोकेशन। अगर आपको ये जो राइट हैंड साइड पर देखो लोअर डायग्राम नजर आ रही है जिसमें कि सर्जन की फिंगर जो है वो एपिप्लॉइक फोरामेन के अंदर है। अगर मैं ये लिखा हुआ ना हो इस पिक्चर के ऊपर कि ये एपिप्लॉइक फोरामेन है और ये पिक्चर आपको आस्पी में दे दूं तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये लिवर और स्टमक के दरमियान में फोल्ड के नीचे मैंने क्या पॉइंट किया हुआ है। आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर पॉइंटेड बाय द सर्जन्स फिंगर, तो ये एपिप्लॉइक फोरामेन है, ठीक है। लोकेशन पता चल जानी चाहिए आपको। अब इसकी एपिप्लॉइक फोरामेन की बाउंड्रीज होती हैं, ठीक है। अब इसके लिए मैंने ये डायग्राम डाली थी, ये जो हमारे लेफ्ट साइड पे देखो, लेफ्ट साइड पे आपको ये जो डायग्राम नजर आ रही है ना, ये आपने अपने इम्प्रिंट कर लेनी है दिमाग के अंदर, क्योंकि जब आप ये डायग्राम देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि एपिप्लॉइक फोरामेन के इर्द गिर्द सुपीरियर, इंफीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर क्या इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स पड़े हुए हैं कि हम एपिप्लॉइक फोरामेन को काट नहीं सकते, हम इसको बड़ा नहीं कर सकते, ठीक है। पहले तो हम बात करते हैं कि क्या है बाउंड्रीज, फिर हम बात करते हैं कि काटने की क्यों जरूरत पेश आई, इसकी बात क्यों मैंने की। एपिप्लॉइक फोरामेन हैज द फॉलोइंग बाउंड्रीज: anteriorly the free border of the lesser omentum, the bile duct, the hepatic artery and the portal vein। इसको, इन तीनों चीजों को हम कहते हैं ये ट्राइड स्ट्रक्चर है,
ठीक है, ये ट्राइड स्ट्रक्चर हम कंसिडर करते हैं। क्या है ट्राइड स्ट्रक्चर? बाइल डक्ट, हेपेटिक आर्टरी, पोर्टल वेन। बाइल डक्ट क्या है? जो कि हमारी जो कॉमन हेपेटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट को मिलके बनती है, कॉमन बाइल डक्ट, और वो नीचे आती है, उसके अंदर हमारी वो जो होती है पैनक्रियाटिक डक्ट, वो ज्वाइन करती है। ये सब ज्वाइन करके ये खुलते हैं इनटू द सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, जो कि हमने कहा था कि हमारे फोरगट और मिड गट का जंक्शन है। तो ये ट्राइड स्ट्रक्चर इसके अंदर पड़ा हुआ है, ये हमारे लेसर ओमेंटम के फ्री बॉर्डर में। अब एपिप्लॉइक फोरामेन के एंटीरियरली हमारे पास फ्री बॉर्डर ऑफ लेसर ओमेंटम है, जिसके अंदर हमारी बाइल डक्ट, हेपेटिक आर्टरी और पोर्टल वेन पड़ी हुई है। ठीक है, तो एंटीरियर बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं। फिर पोस्टीरियरली हमारा पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल पर इंफीरियर वेना केवा पड़ा हुआ है। सुपीरियरली हमारा कॉडेट प्रोसेस ऑफ द कॉडेट लोब ऑफ द लिवर पड़ा हुआ है। चलो शॉर्ट करके बोलते हैं तो सुपीरियरली लिवर पड़ा हुआ है, इंफीरियरली ड्यूडेनम है। ठीक है, अब इसके एंटीरियरली ट्राइड स्ट्रक्चर्स है, पोस्टीरियरली इंफीरियर वेना केवा है, सुपीरियरली देखो तो लिवर है, इंफीरियरली देखो तो ड्यूडेनम है। ठीक है, चारों तरफ इसके बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं। फर्ज करो अगर कोई इंटरनल हर्निया हो गया है और वो कॉम्प्लिकेट हो गया, हर्नियास तो पढ़ ली है ना आपने, वो जो प्रोट्रूजन और पार्ट ऑफ विस्कस और पार्ट ऑफ विस्कस जो कि एबनॉर्मल प्रोट्रूजन होती है थ्रू अ नॉर्मल ओपनिंग, हर्निया पढ़ा है ना आप लोगों ने? Yes, ma'am. समझ आया है कि नहीं? इतना हल्का यस बोल रहे हो। हर्निया हो जाता है, एक एक्सटर्नल हर्निया होता है जो तुम लोगों ने इनग्वाइनल हर्नियास पढ़े हैं, फेमोरल हर्नियाज होते हैं, अम्बिलाइकल हर्नियाज होते हैं ना, ये सारे एक्सटर्नल हर्नियाज होते हैं। Yes, ma'am. इंटरनल हर्नियाज होते हैं जो हमारी पेरिटोनियम की जो डिफरेंट फोल्ड्स हैं, जो ओपनिंग्स हैं, उनके अंदर इंटेस्टाइनल लूप्स घुस जाते हैं। इंटरनल हर्निया हो गया, फिर वो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड ट्विस्ट हो गया अंदर जाके, उससे इंटेस्टाइन्स बंद हो गई और इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो गई, निक्रोसिस हो गई। ये सर्जिकल इमरजेंसी होती है। हमें फौरी तौर पर एब्डोमिनल कैविटी को खोलकर लेप्रोस्कोपी करके, लेप्रोस्कोपी का लफ्ज पता चला है कि लेप्रोटमी क्या होती है? लेप्रोटमी क्या होती है जी? शहवार बताइए, लेप्रोटमी क्या होती है? एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल भी पढ़ी है आपने, सर्जिकल इंसिजन्स भी पढ़े हैं सारे। इतना तो आइडिया हो गया होगा कि लेप्रोटमी क्या होती है बेटे? नहीं आइडिया? बच्चे बोल तो दो ताकि मुझे पता चले कि मैं अपने लैपटॉप को नहीं पढ़ा रही, अपने सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ। नहीं पता मैम। बेटा ये लेप्रोटमी होती है जो हम एब्डोमिनल कैविटी को ना खोलते हैं। ठीक है, ये चीजें अगर आप लोग साथ साथ पढ़ लो तो चीजें समझनी आसान हो जाती हैं बेटा। अच्छा एनीवेज, तो हम, अब मैं क्लिनिकल साइड पर फिर आगे ज़्यादा चली गई थी, फिर मैं अभी नहीं बताती ये चीज़ें, क्योंकि आप लोगों ने जब एनाटमी की चीज़ें ही नहीं पढ़ी तो फिर आपको ये मैं कैसे बताऊं। अब हम वाइवा में जब आपसे सवाल पूछेंगे 28 को, मंडे को, जब सब स्टेज है, तो आप लोग कैसे जवाब देंगे? ओके एनीवेज, एपिप्लॉइक फोरामेन की हमने बाउंड्रीज कर ली, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स कर लिए, और हमें पता चल गया। ओके आगे चलें। Surgical approach to lesser sac without disrupting the epiploic foramen. ये जो डायग्राम आपको नजर आ रही है ना, ये मैं आपसे बात कर रही थी ना कि अगर इंटरनल हर्निया हो जाए या कोई भी वजह हो जाए, आपने ओमेंटल सैक में एंटर होना है, ओमेंटल बर्सा में एंटर होना है। जी बेटा प्लीज बताइए, इफ देयर इज एनी क्वेश्चन या कोई बात समझ नहीं आ रही तो वी कैन रिपीट इट। वो जो मैंने आपको वो लेयर्स वाली बात बताई है ना, वो भी हम दोबारा करेंगे, डोंट वरी। उसके अलावा अगर कोई बात है तो बताओ। स्टूडेंट्स आपको मेरी आवाज आ रही है बेटा? यस मैम आ रही है। ओके,
तो ये अगर आपसे कोई सवाल पूछे वाइवा में कि अगर इंटरनल हर्निया हो गया है एंड वी नीड टू उसको डीटैंगल करना है, उसको सर्जिकल इमरजेंसी आपने ऑपरेट करना है, आप कैसे एंटर होंगे मेंटल बर्सा में? आप एपिप्लॉइक फॉर्मेन से एंटर नहीं होंगे, आप ये देखो यहाँ से कट लगाएंगे, ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टमक से नीचे से आपने कट लगाकर उसको ऊपर रिफ्लेक्ट कर दिया है। फिर आप जो उसकी इंटेस्टाइन्स की जो लूप्स होती हैं जो इसमें इंटरनल हर्निया में यहाँ फंस जाती हैं, कॉम्प्लिकेट कर देती हैं, यहाँ से आप उनको मैनेज कर सकते हैं, आप उनको काट कर एंड टू एंड एनास्टमोसिस कर सकते हैं, आप वापस ग्रेटर सैक में उसको लूप्स को कर सकते हैं और दोबारा से इसको स्टिच कर दें। आप एपिप्लॉइक फॉर्मेन को डिसरप्ट नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ द इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, ये वाली स्लाइड जो है ये मैंने इसलिए डाली थी कि आपको जो टर्म्स हैं पेरिटोनियम वाली वो समझ आए कि जब हम टर्म्स यूज करते हैं तो हमारा क्या मतलब होता है। जब हम लिगामेंट का लफ्ज यूज करते हैं ना, लिगामेंट, उसका मतलब है पार्ट ऑफ पेरिटोनियम विच कनेक्ट्स विसरा टू विसरा या विसरा टू एब्डोमिनल वॉल। ठीक है, तो हम लिगामेंट का वर्ड यूज करते हैं। जब हम ओमेंटम का लफ्ज यूज करते हैं तो वर्ड ओमेंटम का मतलब है some coverings that covers the stomach and connects it to other viscera। ठीक है, आपको लिगामेंट का वर्ड जब आप यूज करते हैं तो विसरा है या विसरा टू एब्डोमिनल वॉल है। ओमेंटम वर्ड हम यूज करते हैं जब हम किसी भी ऐसी कवरिंग जो कि स्टमक के साथ रिलेटेड है, जो स्टमक को कनेक्ट करी है दूसरे विसरा के साथ, तब हम मोमेंटम का लफ्ज यूज करते हैं। और मेजेंट्री वर्ड जो है, मीजो लफ्ज यूज होता है हमारी पेरिटोनियल कवरिंग के लिए और एंटेरॉन होता है इंटेस्टाइन्स के लिए। तो इंटेरॉन से एंट्री, मेजेंट्री होता है फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम जो कि इंटेस्टाइन्स को पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ कनेक्ट कर रही है। अगर अपेंडिक्स को कनेक्ट करिए तो हम कह रहे हैं मीजो अपेंडिक्स, कोलॉन को करिए तो मीजो कोलॉन या सिग्मोइड मीजो कोलॉन। अब इन लफ्जों, अगर लफ्ज कोई आपके सामने बोले ना तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि ये क्यों बोले और इसका क्या मतलब है। उस लफ्ज के अंदर ही होता है कि इसका ये हम किस फोल्ड की बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर ये बात भी मैंने आपसे कर दी थी कि इंट्रापेरिटोनियल और रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स होते हैं। अच्छा, इसमें एक दो बातें और हैं जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। आपसे वाइवा में पूछा जाता है टेल मी द नेम्स ऑफ 4 इंट्रापेरिटोनियल स्ट्रक्चर्स या 4 एक्स्ट्रा पेरिटोनियल स्ट्रक्चर्स। तो आपको इनका नाम आना चाहिए, कौन सा इंट्रापेरिटोनियल है, कौन सा एक्स्ट्रा पेरिटोनियल है। The mobile organs suspended by the folds of peritoneum and fully covered by it are called intraperitoneal structures. For example, liver, stomach, jejunum, ileum, spleen, transverse colon, sigmoid colon, etc. And intraperitoneal organs are not truly intraperitoneal or lie inside the peritoneal cavity. They are just covered on almost all sides with layers of peritoneum. The immobile and fixed organs which rest against the posterior abdominal wall and are only partially covered by peritoneum are called retroperitoneal. For example, kidneys, duodenum, ascending colon, descending colon, pancreas and ureter. बेटा प्लीज अपना माइक बंद कर दीजिए, मुझे डिस्टर्बेंस हो रही है। रोल नंबर 8। सॉरी मैम। कोई मसला नहीं। ओके, दीज ऑर्गन्स, अब जब हम रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स की बेटा बात करते हैं ना, तो रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स प्राइमरीली या सेकेंडरीली रिट्रोपेरिटोनियल हो सकते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि प्राइमरी रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स वो हैं जो हमेशा से पेरिटोनियल कैविटी के बाहर ही थे, मतलब वो एक्स्ट्रा पेरिटोनियल थे राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ डेवलपमेंट, while those suspended by the peritoneal folds in the embryological life, but later their peritoneum got absorbed and they become retroperitoneal, are the secondary retroperitoneal organs. अब प्राइमरी और सेकेंडरी में आपको फर्क पता होना चाहिए। मैंने वीडियो में अभी आपको एक चीज दिखाई भी थी, उसमें मैंने दिखाया था कि पैनक्रियास जो है वो पहले
इंट्रापेरिटोनियल था, फिर कैसे वो जब गट की रोटेशन की वजह से पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ आके लगा और सेकेंडरली रीट्रोपेरिटोनियल हो गया। ठीक है, इसी तरह से जो किडनीज होती हैं वो प्राइमरीली एक्स्ट्रा पेरिटोनियल होती हैं, और कुछ होते हैं जो सेकेंडरली कुछ होते हैं जो प्राइमरीली होते हैं, कुछ होते हैं जो सेकेंडरली रीट्रोपेरिटोनियल हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा ये एक छोटी सी वो जो जिस तरह मैंने आपको पेरिटोनियम का बताया था कि कैसे जो पहले प्राइमरी रीट्रोपेरिटोनियल होते हैं वो बाद में किस तरह से सेकेंडरली रीट्रोपेरिटोनियल हो जाते हैं, उनकी पेरिटोनियम जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती है रोटेशन की वजह से। ठीक है, उनको हम सेकेंडरी कहते हैं रीट्रोपेरिटोनियल। अच्छा, रीट्रोपेरिटोनियल स्पेस एक बाकायदा सवाल होता है, एससीक्यू होता है रीट्रोपेरिटोनियल स्पेस, इसकी वॉल्स होती हैं। अगर आप राइट हैंड साइड पर देखो डायग्राम्स, जो नीचे वाली डायग्राम है ना, ये पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल की डायग्राम है, जिसमें आपको एब्डोमिनल अयोर्टा और इंफीरियर वेना केवा नजर आ रहे हैं, आपको किडनीज और पैनक्रियाज और ड्यूडेनम नजर आ रहे हैं, आपको सुपीरियर मेसेंटेरिक वेसल्स नजर आ रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो तो कुछ जगह पर क्लियर है, कुछ जगह पर ऐसे ओपेक हेजी सा अपीयरेंस है। वो जो हेजी अपीयरेंस है ना, वो पेरिटोनियम है। ठीक है, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल पे पेरिटोनियल रिफ्लेक्शंस है। अब यहाँ पर ये देखो किडनीज के ऊपर जैसे ये पूरा किडनीज जो है उसका सिर्फ एंटीरियर सरफेस का कुछ पार्ट है जो पेरिटोनियम से कवर्ड है। इसी तरह से लेफ्ट साइड पे देखो कुछ पार्ट है जो पेरिटोनियम से कवर्ड है। एक्चुअली किडनीज रीट्रोपेरिटोनियल है। ठीक है, तो एक तो ये पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से आपको पता चल जाता है। फिर ऊपर वाली डायग्राम देखो, आपको जो ब्लू आउटलाइन नजर आ रही है ना, ये पेरिटोनियल कैविटी है सारी, और इस ब्लू कैविटी के पीछे जो नजर आ रहा है ना आपको, ये लंबर विटब्री आपको डिस्क नजर आ रही है, दोनों साइडों पर आपको ये मसल्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, फिर आपको ये एब्डोमिनल अयोर्टा और इंफीरियर वेना केवा नजर आ रहा है, ये सारी चीजें, ये रीट्रोपेरिटोनियल है। ठीक है, अगर आप इसी तरह से इसके साथ ये वाली डायग्राम देखो तो ये ब्लू कैविटी जो है ये ग्रेटर सैक नजर आ रही है और पेरिटोनियल कैविटी है। ठीक है, और पेरिटोनियल कैविटी के पीछे जो ये रेड कलर का मैंने शो किया है ना, ये दिस इज ऑल रीट्रोपेरिटोनियल स्पेस। ये लोकेशन आपको पता होनी चाहिए कि अगर मैं ओमेंटल बर्सा कह रही हूँ तो मैं क्या कह रही हूँ, कहाँ पर है वो स्पेस। अगर मैं एपिप्लॉइड फोरामेन कह रही हूँ तो वो कहाँ है स्पेस, अगर मैं रीट्रोपेरिटोनियल स्पेस कह रही हूँ तो वो कहाँ है। ठीक है, तो रीट्रोपेरिटोनियल देखो तो सुपीरियरली डायफ्राम है यहाँ पर, inferiorly pelvic diaphragm है, lateral borders at lateral edges of quadratus lumborum, ये quadratus lumborum मसल होता है posterior abdominal wall का, but lateral edge of 12th rib भी हम consider करते हैं lateral borders में। फिर आ जाओ कि anterior border इसका बनता है parietal peritoneum। ठीक है, पोस्टीरियर बॉर्डर इसका ये मसल्स ऑफ पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल होते हैं वो बनाते हैं। वो कौन से होते हैं, सोआस मेजर होता है, क्वाड्रेटस लंबोरम होता है, फिर आइलेटस होता है। ये सारे वो मसल्स हैं जो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में पड़े हुए हैं और वो इसकी पोस्टीरियर बाउंड्री बना रहे हैं। ठीक है, ये रीट्रोपेरिटोनियल स्पेस की बाउंड्रीज आपको आनी चाहिए। आगे आ जाओ तो ये एक निमोनिक मैंने इसमें डाला था कि आपके लिए याद करना आसान हो जाता है। वैसे तो आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल पे आप देखते हैं आपको क्या ऑर्गन्स नजर आते हैं, क्या है जो रीट्रोपेरिटोनियल है, लेकिन एक जैसे होता है ना, हम कुछ चीज़ों के निमोनिक्स भी बना लेते हैं ताकि हमें याद रहे। इसी तरह से ये हमने निमोनिक इसमें ये बनाया है, डाला है। ये निमोनिक है सैड पकड़। ठीक है, हर लफ्ज से देखो क्या बन रहा है, ये सारे समझ लो कि रीट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स हैं या एक्स्ट्रा पेरिटोनियल ऑर्गन्स हैं। जब आप याद करोगे, आपसे कोई पूछता है वाइवा में कि आप नाम बताइए मुझे रीट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स के या एक्स्ट्रा पेरिटोनियल ऑर्गन्स के, तो आप एकदम अपने दिमाग के अंदर ये निमोनिक लाएं और एक एक लफ्ज से बोलते जाएं। जैसे एस से सुप्रारीनल ग्लैंड, ए से आयोटा, डी से ड्यूडेनम, पी से पैनक्रियाज, यूरेटर्स, कोलॉन, किडनीज, एसोफेगस, रेक्टम। ठीक है, ये सारे जो हैं ये रीट्रोपेरिटोनियल है। अच्छा, इसमें जब हम जैसे जैसे तफसीलात पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा, जैसे रेक्टम जो होता है ना वो सारे का सारा रीट्रोपेरिटोनियल नहीं होता, उसको हम 3 सुपीरियर, मिडल, इंफीरियर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और उसका जो अपर पार्ट होता है या सुपीरियर पार्ट होता है ना वो इंट्रापेरिटोनियल होता है। तो जैसे जैसे हम डिटेल पढ़ेंगे तो हम उसको करते जाएंगे कि क्या है। अच्छा, फिर हम इसकी डिफरेंट फोल्ड्स और कंटेंट्स पढ़ने से पहले एक दफा फिर क्विकली
ये रिवाइज कर लेते हैं। बल्कि आपको याद ही होगा कि फोरगट और मिडगट का जंक्शन कहाँ पर होता है, जहाँ पर ओपनिंग ऑफ कॉमन बाइल डक्ट है, फिर मिडगट। दोबारा रिज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि लेस देन अ मिनट रह गया है। अच्छा चलो, ये खत्म होता है तो मैं कर लेती हूँ दोबारा। ओके ओके अच्छा, तो हम ये रिवाइज जल्दी से कर लेते हैं कि हमारा मिडगट और हाइंडगट का जहाँ पे जंक्शन है वो हमारा ट्रांसवर्स कोलॉन का जो राइट 2/3 और लेफ्ट 1/3 है वहां पर होता है, और ये आ जाती हैं वो आर्टरीज हमारी फोरगट, मिडगट और हाइंडगट की आर्टरीज। ठीक है, अब यहीं से हम फिर अगले वाला जो सेशन है ना वो यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं।